Assalamu alaikum students. I am Muhammad Amjad, lecturer, Department of Education and Psychology, Kohat University of Science and Technology, your instructor for the course of Theories of Personality. Student, I welcome you to lecture number 11 of your course Theory of Personality. Today we will be studying the topic of Alfred Adler's theory of personality. Students, this topic is divided into two parts, part 1 and part 2. Today we will discuss part 1 of this lecture. So let's start our lesson. So first of all, we will see the biographical sketch of Alfred Adler. Then we will discuss the theory of personality of Alfred Adler, which is known as individual psychology. Then we will discuss its main concepts: feelings of inferiority, inferiority complex, organs of inferiority, striving for superiority. So let's start the biographical sketch first. Alfred Adler was born in Vienna, Austria on February 7, 1870 and died in 1937. He had miserable childhood. He suffered from rickets, which prevented him to take part in sports. He had severe rivalry with his older brother, who was very athletic and the model child of the family. स्टूडेंट, एज यू नो, ही हैड वेरी मिजरेबल चाइल्डहुड. ही सफ़र्ड फ्रॉम रिकेट्स. रिकेट जो है ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें इंसान की हड्डियाँ इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि उसके अपने वज़न से ही उसकी हड्डियाँ टूट सकती हैं. तो इस वजह से एल्फ्रेड एडलर किसी भी फ़िज़िकल एक्टिविटी में, किसी भी स्पोर्ट में कोई हिस्सा नहीं ले सकता था. दूसरी तरफ उसका जो बड़ा भाई था वो एक स्पोर्टमैन था, एक एथलीट था और सेंटर ऑफ अटेंशन था अपनी फैमिली का. तो उसको देख के एल्फ्रेड एडलर के अंदर फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई कि मैं किसी स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं ले सकता, ठीक है, मुझे इतनी ज़्यादा सेंटर ऑफ अटेंशन मैं नहीं हूँ अपनी फैमिली में जितना मेरा बड़ा भाई है, ठीक है. तो इस वजह से उसके अंदर फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी डेवलप होना स्टार्ट हो गई, जिसको हम बाद में डिटेल से पढ़ेंगे इसकी थ्योरी में. सो लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड. When he was 5 years old, he suffered from pneumonia. After getting better, he decided to become a medical doctor. He received a medical degree from the University of Vienna in 1895. He began his medical career as an ophthalmologist, but he soon switched to general practice. He then turned to psychiatry. Adler read Freud's book called The Interpretation of Dream. He wrote a paper supporting this book. Freud impressed with Adler. Freud invited Adler to join the Psychoanalytic Society and to become the president of the society. Soon he began to find that Freud could not take criticism and would become very aggressive and abusive. Adler resigned as the president of Psychoanalytic Society. तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि सिगमंड फ्रॉइड ने एक बुक लिखी थी द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम. जब एल्फ्रेड एडलर ने वो बुक पढ़ी तो वो फ्रॉइड से काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुआ और उसने उसकी बुक की सपोर्टिंग में एक पेपर लिखा. जब वो पेपर सिगमंड फ्रॉइड ने पढ़ा तो वो एडलर से काफ़ी इम्प्रेस हुआ और उसने एडलर को इनवाइट किया और उसको ऑफ़र की कि वो उसकी साइको एनालिटिक सोसाइटी को ज्वाइन कर ले. जब एडलर आया और उसने साइको एनालिटिक सोसाइटी ज्वाइन की तो सिगमंड फ्रॉइड ने उसको अपनी सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना दिया. जब एडलर साइको एनालिटिक सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना तो उसने फ्रॉइड को क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर दिया ऑन अ नंबर ऑफ इश्यूज़, जिसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था दैट वाज ही डिसएग्रीड विद फ्रॉइड on the point that Freud put too much emphasis on sex as a determinant of behavior. As a result, Freud angry with Adler और वो उससे इतना ज़्यादा नाराज़ हुआ कि उसको मजबूर कर दिया और एडलर ने साइको एनालिटिक सोसाइटी से रिज़ाइन दे दिया. इंडिविजुअल साइकोलॉजी.
Adler coined the term individual psychology and began developing his own theory of personality. Individual psychology refers to the idea that we should see people as a whole rather than parts. जब एल्फ्रेड एडलर ने रिज़ाइन किया साइको एनालिटिक सोसाइटी से, तो उसके बाद फिर उसने अपनी एक थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी बनाई जिसको उसने इंडिविजुअल साइकोलॉजी का नाम दिया, और इसका मेन फोकस जो था वो होलिस्टिक अप्रोच पे था कि हमें एक इंडिविजुअल को एज अ होल देखना चाहिए, एज अ पार्ट नहीं देखना चाहिए. फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी. फॉर एडलर, all of us start life with feelings of inferiority because we are completely dependent on adults for our survival. This feeling of being weak and inferior leads to overcome feeling of inferiority. Feeling of inferiority is conscious. So students, यहाँ पर आपने feelings of inferiority के बारे में देखा कि हम सब लोग जब अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करते हैं तो वो फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी से स्टार्ट करते हैं कि बिकॉज वी आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एडल्ट्स एंड केयर गिवर्स फॉर आवर सर्वाइवल. और यही जो हमारी फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी हैं, यही फिर बाद में जो है हम कोशिश करते हैं, हमारे अंदर एक डिज़ायर डेवलप हो जाती है कि हमने इस इन्फीरियोरिटी को कैसे सुपीरियोरिटी में चेंज करना है. और इस इन्फीरियोरिटी को हम सुपीरियोरिटी में कैसे चेंज करेंगे वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे. फिर उसके बाद जो सेकंड पॉइंट था वो ये था कि फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियोरिटी इज़ कॉन्शियस. Feelings of inferiority is a part of one's personality that one is aware of. जब आप अपनी feelings of inferiority से aware होते हैं तो this is called your feelings of inferiority is conscious. उसके बाद उसने एक और कॉन्सेप्ट दिया inferiority complex का. तो इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स क्या होता है? इन्फीरियोरिटी कम्प्लेक्स इज अनकॉन्शियस. व्हेन यू रिप्रेस दोज फीलिंग्स, जब आप उन फीलिंग्स को दबा दें, आप उनसे मुंह मोड़ लें और आप ये उन पे बिलीव करें, तो आप ये समझें कि ये फीलिंग्स मुझ में नहीं हैं, तो फिर अकॉर्डिंग टू एडलर ये फीलिंग्स कम्प्लेक्स बन जाती हैं and it goes into unconscious of a person. Organs of inferiority. According to Adler, some of us are born with weak eyes, other with weak stomach, some with weak hearts. These biological deficiencies or shortcomings create problem for people. An individual with organ inferiority compensates for this particular weakness by concentrating on its development or by emphasizing other functions which make up for their weaknesses. For example, a blind person may concentrate on development of his auditory skill or focused more on some other modality such as touching or feeling. Students, एडलर के मुताबिक हम में कुछ लोग पैदाइशी तौर पर नाबीना पैदा होते हैं, कुछ लोग डेफ होते हैं, ठीक है, और कुछ लोगों में डिफरेंट डिफिशेंसीज पाई जाती हैं. फॉर एग्जांपल, किसी के हाथ नहीं होते, किसी के पाँव नहीं होते, ठीक है. इसको हम बोलते हैं ऑर्गन इन्फीरियोरिटी. और ये ऑर्गन इन्फीरियोरिटी और ऑर्गेनिक इन्फीरियोरिटी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं. अब एक बंदा जिसको ऑर्गन इन्फीरियोरिटी है वो इसको कैसे ओवरकम करेगा? मींस कि वो अपनी इस कमज़ोरी को कैसे अपनी ताकत बनाएगा? वो इसको ओवरकम करेगा थ्रू कंपनसेशन. अब वो कैसे कंपनसेट करेगा? कंपनसेट करेगा उसके जो दूसरी सेंसेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा फोकस करेगा, उनको डेवलप करने की कोशिश करेगा. जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक बंदा है वो नाबीना है और बहरा भी है, तो उसकी जो छूने की हिस्स होती है, सेंस ऑफ टच जो होती है, वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी होती है, ठीक है. तो वो डिफरेंट चीज़ों को टच करके वो बता देता है कि ये चीज़ क्या है, ठीक है.
इसके अलावा आप लोगों ने और भी अपनी डेली लाइफ में काफ़ी ऐसी एग्जांपल्स देखी होंगी। एक बंदा है जिसके दोनों हाथ नहीं हैं, तो वो फिर अपने पाँव से जो है वो सारे काम करता है, वो अपने पाँव से लिखता है। आप लोगों ने ऐसे लोगों को देखा होगा और उनकी राइट जो है वो एक पेंटर की राइटिंग से ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि उन्होंने अपनी उस जो उनकी वो डेफिशिएंसी थी, जो उनके हाथ नहीं थे, उन्होंने उस डेफिशिएंसी को ओवरकम किया थ्रू कंपनसेशन। उन्होंने अपने उसके जो पाँव थे उनको उसने काफ़ी ज़्यादा डेवलप किया डिफरेंट वर्क्स के लिए, डिफरेंट कामों के लिए उन्होंने उसको इस काबिल बनाया। वो उसी से जो है खाना भी खाते हैं, अपने पाँव से लिखते भी हैं और भी काम करते हैं। स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी। According to Alfred Adler, a single drive or motivating force behind all our behavior and experiences, and that motivating force is striving for superiority. He thought that because of organic inferiority, a person develops striving for superiority. अब एडलर के मुताबिक हमारे जितने भी बिहेवियर या एक्सपीरियंसेस हैं उनके पीछे एक मोटिवेटिंग फोर्स होती है, और उस मोटिवेटिंग फोर्स को क्या कहा जाता है? स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी। और एडलर के मुताबिक बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिक इन्फीरियोरिटी, इन ऑर्गेनिक इन्फीरियोरिटी की ही वजह से एक बंदे के अंदर स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी डेवलप होती है। और ये जो स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियोरिटी होती है ये कितनी किस्म की होती है? ये दो किस्म की होती है। एक होती है कंपनसेशन और दूसरी होती है ओवर कंपनसेशन। सो कंपनसेशन एंड ओवर कंपनसेशन। कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन मीन्स स्ट्राइविंग टू ओवरकम, एंड ओवर कंपनसेशन क्या है? द इंफीरियर ऑर्गन कैन बी स्ट्रेंथन एंड इवन बिकम स्ट्रोंगर देन इट इज़ इन अदर्स। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहता हूँ कि फॉर एग्जांपल एक बंदा है जिसको स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, वो हकलाता है, ठीक है। अब उसने बोलना सीख जाता है, वो अपनी उस स्टटरिंग प्रॉब्लम को कंपनसेट कर लेता है, ठीक है। तो दिस इज़ कॉल्ड कंपनसेशन। जब उसने बोलना सीख लिया है अब वो हकलाता नहीं है। अब ओवर कंपनसेशन क्या है? ओवर कंपनसेशन ये है कि उसने अपने बोलने को इतना अच्छा बनाया, मीन्स कि उसने इतनी मेहनत की कि अब वो इतना अच्छा बोल लेता है कि वो एक कमेंटेटर बन गया है या एक एक्टर बन गया है। तो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ ओवर कंपनसेशन। These are the references. Thank you very much, students.